Hello students, welcome to Gnan Manjari Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture, we have started our chapter number 1 from social and political life. And in this video lecture, we will move further in this chapter. And in this chapter, in this video lecture, we will discuss about advantages of diversity, then factor affecting diversity, and in the last we will discuss about unity in diversity. So let's get start the topic. So first of all, let's learn about advantages of diversity. So first advantage is diversity adds variety to our lives in many ways. Different cultures add to art and beauty in the world. So डाइवर्सिटी से क्या फ़ायदा होगा कि वैरायटी हमारी लाइफ में आएगी, जैसे कि फूड में, क्लोथिस में, डांस, सिंगिंग, तो ये सभी में हमें वैरायटी देखने को मिलेगी और इस वैरायटी से क्या होगा, हमारा कल्चर काफ़ी प्रॉस्परस बनेगा. Then second advantage, new ideas. We learn new and different things by talking to various people because everyone thinks and sees the world differently. So, हम जब भी people के साथ बातचीत करेंगे तो इससे हमें कई नई और different things जानने को मिलेगी, क्योंकि everyone thinks and sees the world differently. सभी को जो थिंकिंग प्रोसेस है, सभी को इस वर्ल्ड को देखने का नज़रिया है, ये डिफरेंट होता है, तो इससे हमें काफ़ी नई थिंग्स लर्न करने को मिलेगी. देन थर्ड एडवांटेज, ओपन माइंड. व्हेन वी मीट द पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वी बिकम मोर ओपन टू डिफरेंसेस एंड कैन हैव एन ओपन माइंड. सो डाइवर्सिटी से ओपन माइंड डेवलप होगा. हम पूरे दिन डिफरेंट बैकग्राउंड्स के पीपल को मिलते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा माइंड ओपन होगा, हम डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड के बारे में जानने लगेंगे. सो इससे हमारा माइंड काफ़ी ओपन बनेगा. सो दिस इज अबाउट एडवांटेजेस ऑफ डाइवर्सिटी. नाउ आई विल स्टार्ट वन एनिमेटेड वीडियो. Diversity in India. India is a large country. It exhibits diversity in multiple ways, from geographical features to the lifestyle of the people. It has 28 states, 22 official languages with 700 dialects, which are variations of a parent language, 6 major religions, and a variety of diverse cultures. This diversity adds to India's beauty and richness. Let us get a glimpse of this richness. India has diverse geographical features like mountains, beaches, plains, rivers, deserts, and forests. It has a wide variety of wildlife and vegetation. It is home to over 91,000 species of animals and 45,000 species of plants. The clothes worn in India differ from region to region. Even saris are draped differently in different parts of the country. Let us see some interesting traditional wear from around India. People wear saris, salwar kameez, mekhela, fehrans, dhoti kurta, and achakans. Almost every state in India has a different staple food with specific spices. Let us see some popular dishes that are prepared in different states of India. This is makki di roti and sarson da saag from Punjab, pongal from Tamil Nadu, litti chauka from Bihar, misal pav from Maharashtra, Puta Rekulu from Andhra Pradesh, biryani from Telangana, momos from Sikkim.
Dance and music are very important in Indian culture, and we see various styles and forms across the country, such as Bharatanatyam, Kathakali, Kuchipudi, Manipuri, Kathak, Odissi, Naga war dance, and Bhangra. Carnatic music, Hindustani classical music, and Qawwali give a glimpse of diverse music of India. Indian folk music like Lavri, Bhangra, and Dandiya are popular around the world. All these things show that India is one of the most diverse nations in the world. We should see and learn new things from people around us every day. This richness makes India such an interesting country to live in. Then let's move to our next topic, and it is what causes diversity. So first of all, here we have one question. Can you locate Ladakh and Kerala? So in this map we can see in the northern side Ladakh is located and in the southern side Kerala is located. So Ladakh is up north near the snowy Himalayas and Kerala is in the south near the sea. So दोनों की लोकेशन, दोनों का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट है. लद्दाख नॉर्थ साइड में है और ये हिमालयास के काफ़ी नज़दीक है. यहाँ पर हमें स्नो देखने को मिलेगा. बट केरला इज़ इन द साउथ नियर द सी. केरला साउथ इंडिया पे है और इसके आसपास इंडियन ओशन हमें देखने को मिलता है. So here we have some questions like, do you think the difference in location will lead to diversity between the people of two places? Means दोनों की लोकेशन में differences देखने को मिल रहे हैं और ये differences के कारण इसके people में कोई diversity होगी. Then second question, what kind of diversity could the location or geography cause in the clothes they wear? Means लोकेशन और जियोग्राफी के कारण क्लोथिस में क्या डिफरेंसेस होंगे. व्हाट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी कुड द लोकेशन और जियोग्राफी कोस इन द क्लोथिस दे वेयर. सो आंसर देखते हैं. सो एज यू माइट हैव गेस्ड, पीपल इन लद्दाख वुड वियर वार्म वुलन क्लोथिस बिकॉज दे लिव इन अ कोल्ड रीजन. क्लोथ की बात करें, लद्दाख एक कोल्ड रीजन है और इसी के कारण लद्दाख के पीपल वार्म वुलन क्लोथिस पहनेंगे. दे वियर वार्म वुलन क्लोथिस. बट केरला की बात करें, ऑन द अदर हैंड पीपल इन केरला वुड वियर लूज कॉटन क्लोथिस एज दे लाइव इन अ वार्म क्लाइमेट नियर द सी. सो केरला साउथ इंडिया में है और साउथ इंडिया में वार्म क्लाइमेट होगा और इसी के कारण केरला के पीपल लूज कॉटन क्लोथ पहनेंगे. तो ये है डिफरेंसेस लद्दाख और केरला के पीपल में क्लोथिस के बारे में क्या क्या डिफरेंसेस है. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रीजंस फॉर डाइवर्सिटी इन लद्दाख. सो वी कैन पुट दिस इंफॉर्मेशन इन द कॉज एंड इफेक्ट टेबल बिलो टू अंडरस्टैंड इट मोर इजीली. सो फैक्टर की बात करें, रीजन बिहाइंड डाइवर्सिटी. सो लद्दाख में कौन सा रीज़न था कि कोल्ड क्लाइमेट नियर हिमालयास और उसी के कारण डाइवर्सिटी देखने को मिली. एंड व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट. सो पॉइंट ऑफ डाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर इफेक्ट हुई थी पीपल वियर वार्म वुलन क्लोथिस. तो यहाँ पर इफेक्ट ये हुई थी कि पीपल ने वार्म वुलन क्लोथ पहनने थे इन लद्दाख. देन केरला की बात करें तो केरला में फैक्टर मीन्स
रीजन बिहाइंड डाइवर्सिटी क्या था? वार्म क्लाइमेट नियर द सी, और इसी के कारण इसकी इफेक्ट क्या हुई थी? पीपल वियर लूज कॉटन क्लॉथ। सो इसके कारण जो केरला के पीपल है ये काफ़ी लूज क्लॉथ पहनते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वार्म क्लाइमेट होगा। So therefore, we can say that the geographical features of a place can cause diversity. So हम कह सकते हैं कि जो geographical features है ये diversity के लिए responsible है. So similarly, the history of a place can also cause diversity. जैसे geographical features ने diversity की, इसी तरीके से जो भी place है इसकी history भी अपनी diversity को cause करेगा. So let's look how it happens. So how does the history of a place cause diversity? For example, Arabs and Asia came to India through Ladakh for trade. They also brought their religion to the people there. As a result, many people in Ladakh today follow Islam. So हम बात करें अरब्स और एशियन पीपल थे, ये हमारे इंडिया में आए थे थ्रू द लद्दाख फॉर ट्रेड एक्टिविटी, एंड ये सभी अपने साथ अपना रिलीजियन भी लाए। मीन्स अरब्स और एशियन पीपल के मोस्ट ऑफ रिलीजन थे मुस्लिम रिलीजन। उस टाइम पे अरब्स पीपल थे, ये मुस्लिम रिलीजन फॉलो करते थे, तो ये सभी अपने रिलीजन को भी हमारे इंडिया में लाए। सो दे ऑल्सो ब्रॉट देयर रिलीजन टू द पीपल देयर। एज अ रिजल्ट मैनी पीपल इन लद्दाख टुडे फॉलो इस्लाम, और इसी के कारण कई सारे पीपल लद्दाख के आज भी इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं। Then in Kerala, it is believed that disciple of a Christ arrived there many years ago and brought Christianity to the people. So many people in Kerala till date are Christians. So केरला की बात करें, केरला में जो डिसिप्ली ऑफ क्रिस्ट मीन क्रिस्ट के जो शिष्य थे ये कई साल पहले केरला में आए थे, और इसके साथ जो डिसिप्ली थे इसने क्रिश्चियनिटी रिलीजियन को केरला में एस्टैब्लिश किया। दैट्स वाई सो मैनी पीपल इन केरला टिल डेट आर क्रिश्चियंस, और आज हम देख सकते हैं कि केरला में क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। सो अब हम देखेंगे रीजंस फॉर डाइवर्सिटी इन लद्दाख एंड केरला। सो रीजंस बिहाइंड डाइवर्सिटी, लद्दाख की बात करें, अरब ट्रेडर्स केम टू लद्दाख, और इफेक्ट की बात करें मैनी पीपल फॉलो इस्लाम रिलीजन। देन केरला की बात करें, फैक्टर रीजन बिहाइंड डाइवर्सिटी, डिसिप्ली ऑफ क्रिस्ट केम टू केरला, एंड व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट, मैनी पीपल फॉलो क्रिश्चियनिटी। सो ये आपको याद रखना है कि हिस्टोरिकल फीचर्स और जियोग्राफिकल फीचर्स ये दोनों डाइवर्सिटी को अफेक्ट करेंगे। सो दैट्स वाई फैक्टर्स ऑफ डाइवर्सिटी की बात करें, factor of diversity is any reason behind why the people of place are different from others. They can be divided into two types: first geographical factors and second historical factor. So example of geographical factors are features like climate, location and soil. These all are geographical factor for the diversity. Then what are the example of historical factor? Past influence like rulers, wars and trade. These are the example of historical factor of diversity. So यहाँ पर आपको फैक्टर ऑफ डाइवर्सिटी की डेफिनेशन याद रखनी होगी। फैक्टर ऑफ डाइवर्सिटी इज एनी रीजन बिहाइंड व्हाई द पीपल ऑफ अ प्लेस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। ये डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ डाइवर्सिटी की definition है। Then let's move to practice question 5.1. So here question is, read the sentences below and underline the parts that show a reason for diversity. Write if they are geographical or historical. So ये आपको सॉल्व करना होगा अपनी सप्लीमेंट्री बुक्स में। इसको आपको अपनी फेयर बुक में नहीं लिखना है, ये आप डायरेक्टली सप्लीमेंट्री बुक में इसको फिल कर सकते हो। सो एग्जाम्पल देखते हैं। मैनी पीपल इन गोवा स्पीक पोर्टुगीज बिकॉज पीपल फ्रॉम पोर्टुगल
ruled over Goa for hundreds of years. So this underline like because people from Portugal ruled over Goa hundreds of years. ये बताता है कि डाइवर्सिटी का रीज़न क्या था कि कई सारे पीपल थे, ये पोर्टुगल पीपल थे, ये गोवा में आए थे और गोवा पे रूल किया था। तो यही एक रीज़न है, रीज़न फॉर डाइवर्सिटी। सो ये रीज़न कौन सा है? हिस्टोरिकल रीज़न, मीन्स इट इज़ हिस्टोरिकल फैक्टर, क्योंकि ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। देन फर्स्ट क्वेश्चन, इन 2011 almost 50% of people in Uttar Pradesh practiced farming because of the fertile soil in the religion. तो यहाँ पर आपको अंडरलाइन करनी होगी फर्टाइल सॉइल इन द रिलीजन पे, क्योंकि यही एक रीज़न है जिसके कारण उत्तर प्रदेश के लोगों ने फार्मिंग प्रैक्टिसेस को स्टार्ट किया था। सो दिस इज द रीज़न ऑफ जियोग्राफिकल, लाइक दिस इज द फैक्टर ऑफ जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। देन हम बात करें सेकंड क्वेश्चन, वी सी मैनी इस्लामिक स्टाइल बिल्डिंग्स विथ डोम्स इन दिल्ली बिकॉज it was the capital of Muslim kings of the Mughal Empire. So this is the example of historical diversity, क्योंकि ये एक हिस्ट्री से जुड़ी हुई बात है। लाइक इसमें क्या कहा था कि जो इस्लामिक स्टाइल बिल्डिंग्स है, डॉम्स है, ये हमें दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसका रीज़न ये था कि इट वॉज द कैपिटल ऑफ द मुस्लिम किंग्स ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के जो मुस्लिम किंग्स थे, इसका कैपिटल था दिल्ली, और इसी के कारण दिल्ली में हमें मैनी इस्लामिक स्टाइल्स एंड बिल्डिंग्स विद डॉम्स फाउंड इन दिल्ली. So this is the historical diversity. Then third point, men in Rajasthan wear turbans or pagdis to protect their heads from the desert's heat. So this is geographical diversity. ये जो रीज़न है to protect their heads from the desert's heat, ये एक जियोग्राफिकल फैक्टर है। इसी के कारण राजस्थान के पीपल टर्बन्स और पागड़ी पहनते हैं। तो ये एक जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। Then let's move to solution of practice question 5.2. So in this solution, you have to fill this box in your supplementary book, like causes and effect. So in the cause, you have to write these three sentences, like many Arab or Portuguese traders came and settled down in Kerala, then has fertile land and climate. Then it is believed that the area had some influence from China. तो ये तीन सेंटेंस आपको कोजेज में लिखने होंगे, क्योंकि इसी के कारण इफेक्ट हमें देखने को मिलती है। लाइक फर्स्ट इफेक्ट की बात करें, पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियंस लाइक जूडिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म, क्योंकि अरब और पोर्टुगीज ट्रेडर्स केरला में आए थे और केरला में सेटल डाउन हो गए थे, और इसी के कारण केरला के पीपल डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। सो दिस इज हिस्टोरिकल फैक्टर, कि एक हिस्ट्री से जुड़ा हुआ फैक्टर है। तो इसके लिए आपको एच के ऊपर राउंड करना होगा। देन सेकेंड कोर्स की बात करें, हैज़ फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट। सो ये एक जियोग्राफी से जुड़ा हुआ फैक्टर है कि क्लाइमेट और लैंड के बारे में लिखा है। सो व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट? मेजोरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस एंड फिश एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि फर्टाइल लैंड है, क्लाइमेट भी काफ़ी अच्छा है, तो इससे क्या होगा, पीपल जनरली राइस, फिश और वेजिटेबल को ईट करेगा। सो दिस इज जियोग्राफिकल फैक्टर, दैट्स वाई आपको क्या करना है, जी के ऊपर राउंड करना होगा, और ये सभी आपको सप्लीमेंट्री बुक में ही करना है। देन इट इज़ बिलीव्ड दैट द एरिया हैड सम इन्फ्लुएंस फ्रॉम चाइना। केरला का एरिया ऐसा माना जाता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस इसमें हमें देखने को मिलेगा। सो व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट? सो द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक चाइनीज नेट। तो इसी के कारण फिशिंग नेट्स है, इसमें भी हमें चाइनीज नेट्स की पैटर्न देखने को मिलेगी। सो ये एक जियोग्राफिकल फैक्टर है कि चाइना का इन्फ्लुएंस केरला में भी हमें देखने को मिलता है। तो चाइना जैसी चीज़ें हमें केरला में भी देखने को मिलेगी। देन इन द सेम वे आपको लद्दाख का भी एक टेबल फिलअप करना होगा इन योर सप्लीमेंट्री बुक। सो
फैक्टर की बात करें, रीज़न बिहाइंड डाइवर्सिटी, लद्दाख इज़ अ डेजर्ट एंड रिसीव्स नो रेनफॉल। लद्दाख में डेजर्ट है और यहाँ पर रेनफॉल काफ़ी कम होती है। सो इफ़ेक्ट क्या होगी कि इफ़ेक्ट, पीपल डिपेंड ऑन मेल्टिंग स्नो फॉर ड्रिंकिंग वाटर। पीपल को जो स्नो मेल्ट होगा इस पे डिपेंडेड होना पड़ेगा फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। तो ये एक जियोग्राफिकल फैक्टर है कि इसमें हमें जियोग्राफी देखने को मिल रही है। लाइक लद्दाख इज अ डेजर्ट एंड रिसीव्स नो रेनफॉल। तो यहाँ पर आपको जी के ऊपर सर्कल करना होगा। देन सेकेंड फैक्टर, नो एग्रीकल्चर एंड गॉड्स प्रोवाइड पश्मीना वूल। सो ये एक जियोग्राफिकल फैक्टर है क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ पॉइंट है और इसमें हमें हिस्ट्री का कोई एंगल देखने को नहीं मिलता। सो व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट, पीपल कीप शीप एंड गोट्स, और इसी के कारण जो पीपल है ये शीप और गोट को रखेंगे, इसको कल्चरिंग इसका करेंगे क्योंकि इससे पश्मीना वूल सभी पीपल को मिलता है। Then let's move to practice question 5.3. So question is, based on the table above, write down the different aspects of diversity that you see between Ladakh and Kerala. So हमने अभी जो टेबल देखे इससे हमें डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट के बारे में लिखना है कि लद्दाख और केरला के बीच में कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट है जिसमें हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। So, first aspect, people in Ladakh eat meat and milk products, while people in Kerala eat rice, fish and vegetables. So, first aspect है on the basis of food कि लद्दाख के people मीट और मिल्क प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेड है। बट केरला की बात करें तो केरला के पीपल राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स को फीड करते हैं। देन सेकेंड पॉइंट, people in Ladakh practice Buddhism and Islam, while people in Kerala practice Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. तो यहाँ पर हमें रिलीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। लाइक लद्दाख के पीपल बुद्धिज़्म एंड इस्लाम को फॉलो करते हैं एंड केरला के पीपल जूडिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। देन थर्ड पॉइंट, पीपल इन लद्दाख कीप sheep and goats and sell wool, while people in Kerala grow spices and go fishing. तो यहाँ पर हमें प्रोफेशन के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। लाइक लद्दाख के पीपल क्या करते हैं, शीप एंड गोट को इसका कल्चरिंग करते हैं और वूल को सेल करते हैं। बट केरला के पीपल स्पाइसेस को ग्रो करते और साथ में फिशिंग एक्टिविटी भी करते हैं। Then let's move to practice question 5.4. So here question is, are there any similarities between people of Ladakh and Kerala? So yes, there are similarities between people of Ladakh and Kerala. For example, in both the places people follow Buddhism. Then there is a significant Muslim population in both regions, and both regions were influenced by Chinese and Arab traders. तो ये सिमिलैरिटी है लद्दाख एंड केरला के बीच में, ये सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। लाइक दोनों प्लेसेस के पीपल बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे हैं। देन दोनों प्लेसेस में हमें मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है एंड दोनों प्लेसेस चाइनीज़ एंड अरब पॉपुलेशन से इन्फ्लुएंस देखने को मिल रही है। So let's move to last part of this chapter and it is unity. So what is unity? Unity means being one or being joined as a whole. Unity means सारी चीज़ें मिलके कोई एक चीज़ को बनाए। बीइंग वन और बीइंग जॉइंट और डिफरेंट थिंग्स एक साथ मिलके कोई एक ग्रुप बनाए। इट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिटी एंड इट कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड यूनस विच मीन्स वन। सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करें, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ टर्म used to show how
very diverse people can work together as a unit. सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कि डाइवर्सिटी मीन्स पीपल में डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, बट ये डाइवर्स पीपल एक साथ किस तरीके से रहते हैं एक यूनिट की तरह, तो ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी. सो द यूनिटी इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ. यू मस्ट रिमेंबर दिस यूनिटी इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ. Then example of unity in diversity. For example, a stick on its own is easy to break, but if tied up with other sticks, it will be almost impossible to break it with your hands. तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है कि एक स्मॉल स्टिक है जिसको तोड़ना काफ़ी इजी है, बट ये सभी स्टिक्स को हम एक साथ जोड़ दे, एक साथ उसको मिला दे, तो इसको हैंड से तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी कि अगर यूनाइट होके रह गए तो हमें कोई हैरान नहीं करेगा, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा. सो एग्जांपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करें, द इंडियन क्रिकेट टीम has very different players from different backgrounds, but they win matches because they work in unity as one team. अदर एग्जाम्पल है कि इंडियन क्रिकेट टीम, इसके प्लेयर्स की बात करें तो डिफरेंट बैकग्राउंड से प्लेयर्स आते हैं, बट ये सभी एक साथ खेल के मैचेस जीतते हैं. तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एक यूनिट की तरह, एक टीम की तरह सभी काम कर रहे हैं और मैचेस को विन कर रहे हैं. तो ये भी एक एग्जांपल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी. सो इंडिया हैज़ ओवर 700 लैंग्वेजेस, मोर देन 9 religions and 29 states. Yet when each person chooses to see themselves as Indians before seeing themselves as unique individuals, it creates a sense of unity. So हमारे इंडिया की बात करें, more than 700 languages, more than 9 religions and total 29 states है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काफ़ी डाइवर्सिटी है, बट जब भी कोई प्रायोरिटी की बात करें तो सभी पहले इंडियंस है कि हम सब ये रिलीजन, ये लैंग्वेजेस, ये स्टेट को छोड़ के हम क्या कहते हैं, वी ऑल आर इंडियंस. बट सेकेंड पॉइंट है कि हम कोई भी अपना इंडिविजुअल्स के बारे में नहीं बताते. जैसे आई एम फ्रॉम गुजरात, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फ्रॉम इंडिया, ये थिंक होनी चाहिए यूनिटी में. इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ यूनिटी. अगर हम ऐसी थिंकिंग रखेंगे कि हम एक इंडियन हैं, तो ये यूनिटी को डिफाइन करेगा. So here we can see that wonderful picture. It is about the more united we are, the stronger we will be. So हम ज़्यादा यूनाइट होके रहेंगे तो हमारी स्ट्रांगनेस भी काफ़ी बढ़ेगी, हम स्ट्रांग बन जाएंगे. So next point, can you share an example of how the students of our school show unity in diversity? So example लिखना है कि स्कूल के स्टूडेंट्स किस तरीके से यूनिटी इन डाइवर्सिटी को शो करेंगे. सो द स्टूडेंट्स ऑफ माय स्कूल शो यूनिटी इन डाइवर्सिटी बाय performing together at the school annual day function or program, then cheering for the school sports team and performing group activities in the class. ये तीन एक्टिविटी है जिससे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को एक्सप्रेस करेंगे. लाइक एनुअल फंक्शन में हम साथ मिलके परफॉर्म करेंगे, देन स्कूल टीम को हम एक साथ मिलके चीयर अप करेंगे, और परफॉर्मिंग ग्रुप एक्टिविटीज़ इन द क्लास. ये तीन ऐसे पॉइंट है जिससे हम हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द स्कूल को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. Then let's move to last part of the chapter, and it is practice question 6.1. So question is, write down any two ways that you see Indians showing unity in diversity today. So आज हमारे इंडिया की सिचुएशन क्या है, आज हम किस तरीके से हमारी यूनिटी को एक्सप्रेस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वन एग्जांपल इज इंडियन क्रिकेट टीम. The players in the Indian cricket team belong to different states and follow different religions. However,
they all come together as one when playing a match. People cheering for them also come together irrespective of their differences. So, हमने पीछे आगे भी देखा था कि इंडियन क्रिकेट टीम डिफरेंट बैकग्राउंड के प्लेयर्स होते हैं बट एक साथ खेल के ये मैच खेलते हैं और मैच को जीतते भी हैं। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कि डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कल्चर से आते हैं बट एक साथ खेल के मैचेस को जीतते हैं। देन सेकंड एग्जांपल, celebrating national days. People from all over the country come together to celebrate Independence Day, Republic Day and गांधी जयंती every year. हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कल्चर है बट इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, इस दिन सभी पीपल मिलके एक साथ इसको सेलिब्रेट करते हैं। Then let's move to practice question 6.2. So here question is, do you think symbols like the Indian flag help in reminding people to stay united? Can you think of any other symbols that promote unity in India? So हम सब हमारे इंडियन फ्लैग को देखते हैं तो काफ़ी हमें यूनिटी जैसा माहौल देखने को मिलेगा। एंड अदर ऐसे सिंबल है हमारे इंडिया में जिससे हमें यूनिटी को प्रमोट करने का मौका मिलेगा। सो यस, सिंबल्स लाइक द इंडियन फ्लैग रिमाइंड पीपल दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन, helping us stay united. Other symbols that promote unity are the national emblem from Ashoka Stoop, देन चरखा सिंबल एंड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। ये सभी पॉइंट है जिससे भी हमें यूनिटी के बारे में पता चलता है कि ये सभी परफॉर्म करने के लिए मीन्स हम बात करें नेशनल एंथम जब भी हम गाते हैं तो हम सब एक साथ मिलके गाते हैं और इससे क्या होगा, यूनिटी बढ़ेगी। So this is about our today's lecture. In this lecture, we have discussed about three important points. First of all, we have discussed about advantages of diversity. Then we have discussed about factors affecting diversity. And in the last, we have discussed about unity in diversity. So I hope you understood very well about all the points, all the topic. And by this today's lecture, we have completed our chapter number 1 of SPL. So I hope you understood all the points from this chapter, and if you have any doubts regarding this chapter, you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video, we will move to our chapter number 2. So तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.